আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्ते, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। राज्य की शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया अभी भी जारी रहेगी। स्कूल की क्वालिटी एक्रेडिटेशन और असेसमेंट के ढांचे TSQAAF सिस्टम के औपचारिक उद्घाटन समारोह में ऐसा ही बात कहा मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने। राज्य की शिक्षा व्यवस्था में स्कूल की गुणवत्ता और मान्यता के ढांचे के मूल्यांकन हेतु स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एश्योरेंस फ्रेमवर्क प्रणाली का औपचारिक उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने किया। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को रविंद्र शतवार्षिकी भवन में एक कार्यक्रम के माध्यम से इस व्यवस्था की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था पर विशेष जोर दे रही है और इस दिशा में शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया भी जारी रहेगी। आगे उन्होंने कहा कि 2022 में उच्च शिक्षा में छात्राओं के एनरोलमेंट में गिरावट देखी गई। इसके बाद कॉलेज स्तर पर छात्राओं के लिए फीस माफ की गई, जिसके परिणाम स्वरूप एनरोलमेंट में वृद्धि हुई है। मेয়েরা আছেন তাদের যে মানে জিআর অর্থাৎ গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও সেটা কিন্তু অনেকটা কমেছিল। তো 2022-তে এসে আমি ঘোষণা করেছিলাম এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে যে তাদের যারা ডিগ্রি কলেজে আছে, এখন 25টা ডিগ্রি কলেজ আমাদের হয়েছে, সব ডিগ্রি কলেজে যে কোনো ধরনের ফিজ আমরা মুকুব করে দিয়েছি তাদের জন্য। এতে করে জিআর রেশিও অনেকটা বেড়েছে আমাদের ত্রিপুরাতে। আমরা যে বিভিন্ন প্রায় সব জায়গার মধ্যেই বিরোধী দলের ওরাও বলেন, বিধানসভায়ও বলেন যে টিচার নেই। আপনারা সবাই জানেন একটা কি কারণে একটা বিরাট গ্যাপ আমাদের চলে এসছে টিচার্স নিয়োগের ক্ষেত্রে। সেখানেও আমরা টিচার্স যাতে তাড়াতাড়ি বিভিন্ন পদে দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করছি এবং গুণগত মানের শিক্ষক আমরা দিচ্ছি, টেটের মাধ্যমে আমরা দিচ্ছি, বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে আমরা দিচ্ছি। তো সেগুলো তো দিচ্ছি। কিছুদিন আগে 226 জন গ্র্যাজুয়েট এবং আন্ডার গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক শিক্ষিকাকে আমরা নিয়োগ দিয়েছি এখানে নিয়োগপত্র। এবং গত 27শে জানুয়ারি শিক্ষা দপ্তরের প্রায় 107 জন লাইব্রেরিয়ান দিয়ে আমরা নিয়োগপত্র দিয়েছি। 15 জন এলডিসি, গ্রুপ ডি 2 জন। তো আমরা আগামী দিনও সমস্ত যে শূন্যপদগুলো আছে, আর এটাই এরকম যে যাকে তাকে ডেকে যারা আগামী দিনের আসল যারা শিক্ষক তাদের কোয়ালিটি যদি না হয়, আমরা বারবার বলছি শিক্ষক দিবসে প্রায়শ আমাদের অনেকে মানে সম্বর্ধনা দেয়। তো সবসময় আমরা জানি যারা শিক্ষক তারা জাতির মেরুদণ্ড বলি। তো জাতির মেরুদণ্ড হতে গেলে তাদের কোয়ালিটি যদি স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন না থাকে, এর জন্য আমরা एकदम ट्रांसपेरेंसी माध्यम ওই ধরনের শিক্ষক দেওয়ার আমরা ব্যবস্থা করছি। मुख्यमंत्री ने बताया कि उल्लास कार्यक्रम के माध्यम से त्रिपुरा वर्तमान में पूर्व साक्षर राज्य बन चुका है। साक्षरता अभियान में जो लोग सफल हुए हैं उनकी दक्षता को और अधिक बढ़ाकर उन्हें कार्य में लगाने की योजना राज्य सरकार बना रही है। यूनिसेफ के दिशा निर्देश के अनुसार 95.06% की औसत साक्षरता दर के साथ त्रिपुरा को पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। 95.6%। তো ইউনেস্কোর যে ক্রাইটেরিয়া সেখানে বলা হয়েছে যে যারা আমরাও ভাবি 95.6% পেয়ে কি করে পূর্ণ সাক্ষরতা রাজ্য পেল, কিন্তু 95% যদি পায় বাকি পার্সেন্টেজ হচ্ছে অনেকে আছে মানে অলরেডি ব্যাড রিডান বা মেন্টালি নট ফিট, ওই যে পার্সেন্টেজ তার কারণেই সেটা হয়নি। কাজেই ওনারা বলছেন যারা 95%-এই ধরে নেওয়া যাবে 100%। তো আমরা সেদিন এই যে গত 23শে জুন আমরা এখানে দিল্লির থেকেও উনি এসেছিলেন, ম্যাডাম এসেছিলেন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে। তো সেটা ঘোষণা করা হয়েছে, অর্থাৎ সমস্ত ত্রিপুরার মধ্যে একটা যে পড়াশোনার যে একটা এনভায়রনমেন্ট, এমন হয় না আমরা ভাবি যে আমাদের গার্জিয়ানরা হয়তো কিছুই জানেন না, তো তাদের মধ্যেও এখন, এবং শুধু তাই নয়, বলা হয়েছে যারা এই শিক্ষা পেয়েছে এই সাক্ষরতা অভিযানে যারা মানে অলরেডি সেটা পাস গট থ্রো, তাদেরকে আগামী দিনে বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়নের সাথে বিভিন্ন আমাদের যে ডিপার্টমেন্ট আছে তাদের সাথেও কীভাবে যুক্ত করা যায় সেই ব্যবস্থার জন্য निर्देश আছে এবং আমরা সেইভাবে কাজগুলো করছি। स्कूल की गुणवत्ता के मूल्यांकन और उसमें सुधार लाने के लिए तैयार किया गया एक सर्वोत्तम अभ्यासों का ढांचा है स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एश्योरेंस फ्रेमवर्क।
यह फ्रेमवर्क स्कूलों को उनकी कार्य क्षमता का मूल्यांकन करने, सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने और उत्कृष्टता की दिशा में काम करने में सहायता करता है। इस ढांचे का उद्देश्य स्कूलों में आत्म विश्लेषण, जवाबदेही, सहयोग और इनोवेशन को प्रोत्साहित करना है, जिससे अंततः छात्रों की बेहतर शिक्षा सुनिश्चित हो सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दिशा निर्देशों के अनुरूप ही राज्य सरकार ने TSQAAF प्रणाली को लागू किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। केवल पेड़ लगाना ही पर्याप्त नहीं है, हमें उन्हें बचाने का संकल्प भी लेना चाहिए। यह बात समाज कल्याण एवं सामाजिक शिक्षा मंत्री टिंकू रॉय ने शुक्रवार को एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में यह बात कही। हालांकि राज्य में हर साल नियम के अनुसार पेड़ लगाए जाते हैं, लेकिन अगर पौधों को बचाने के लिए प्रयास किए जाते तो वृक्षारोपण का मुख्य उद्देश्य बहुत पहले ही पूरा हो जाता। समाज कल्याण एवं समाज शिक्षा मंत्री टिंकू रॉय ने आज यह बात कही। आज का वृक्षारोपण कार्यक्रम दुर्जनगर में आयोजित किया गया। বছর 52 বছর অনুষ্ঠান হয়েছে, প্রত্যেক বছর ক্যালেন্ডার কার্যক্রম 10টা গাছ লাগানো হয়েছে। তাহলে কত গাছ? 500-700 গাছ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু গাছ কোথায়? গাছ নেই। গাছ এর জন্য নেই, গাছ লাগাই ঠিকই, কিন্তু গাছ বাঁচানোর কোনো সংকল্প নেই। এবার সংকল্প নিতে হবে। আমাদেরকে কোভিড শিখিয়েছে যে আমাদের সংকল্প নিতে হবে গাছ লাগানোর পাশাপাশি গাছ বাঁচানো। গাছটা যেন আমরা আজ লাগিয়ে দেবো, এই গাছটা যেন বাঁচে, এই গাছটাকে দেখাশোনা করা। যতটুকু গাছ লাগানোর অনুষ্ঠানের প্রয়োজন, তার থেকে বেশি প্রয়োজন গাছ বাঁচানোর জন্য আমাদের অনুষ্ঠান, অর্থাৎ গাছ বাঁচানোর জন্য অ্যাওয়ারনেস করা, যে গাছ লাগালাম বা গাছ বাঁচাতে হবে। এটা যদি হয় তবেই আমাদের দেখবেন আমাদের যে সংকল্প বা আমাদের লক্ষ্য সেটা পূরণ হবে। राज्य का डेटा सेंटर क्रैश हो गया। इसके परिणाम स्वरूप नौकरी के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने में टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे। इस स्थिति को देखते हुए विभाग के निदेशक को त्रिपुरा प्रदेश युवा कांग्रेस की ओर से एक डेप्यूटेशन सौंपा गया। नौकरी के लिए आवेदन पत्र जमा देने के दौरान ऑनलाइन सर्वर की खराबी के कारण आवेदकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या के जल्द से जल्द समाधान की मांग को लेकर त्रिपुरा प्रदेश युवा कांग्रेस ने स्वास्थ्य विभाग के निदेशक को एक डेप्यूटेशन सौंपा है। हाल ही में राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा नौकरी की एक अधिसूचना जारी की गई थी। इस अधिसूचना के तहत लैब टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी और इमेज टेक्नोलॉजी विभाग में कई सारे रिक्त पदों को भरने की घोषणा की गई थी। विभाग ने इन रिक्तियों को ऑनलाइन माध्यम से भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। इस अनुसार लगभग 20 से 25 हजार नौकरी प्रत्याशी ऑनलाइन आवेदन करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद तकनीकी खराबी के चलते आवेदन प्रक्रिया में समस्याएं उत्पन्न होने लगी थी, जिस कारण विभाग द्वारा फिर से आवेदन करने का निर्देश दिया गया। घोषणा के बाद जब आवेदक दोबारा आवेदन करने गए तो अधिकतर मामलों में सर्वर की समस्या के कारण आवेदन पत्र जमा देना पॉसिबल ही नहीं हुआ। ऐसा त्रिपुरा प्रदेश युवा कांग्रेस ने बताया। কিছুদিন আগে ডাইরেক্টর অফ হেলথ অ্যান্ড সার্ভিসেস থেকে একটা রিক্রুটমেন্ট দেওয়া হয়েছিল, যেখানে অনলাইন রিক্রুটমেন্ট রেজিস্ট্রেশন করতে বলা হয়েছিল, যেখানে ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান ব্লাডের জন্য 39টা পোস্ট, রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজের জন্য 27টা পোস্ট, আর অপটিমেট্রিক্সের জন্য 19টা পোস্টের রিক্রুটমেন্ট ছিল অনলাইন। কিন্তু আমরা দেখেছি যে কিছুদিন পূর্বেই, তার কিছুদিন পরে যখন মোটামুটি 20-25 হাজার ছেলেমেয়েরা এই চাকরির জন্য অ্যাপ্লাই করে ফেলেছিল, তারপরে দপ্তর থেকে একটা নোটিফিকেশন দেওয়া হয়েছে, যেখানে লিখেছে ডিউ টু টেকনিক্যাল ইস্যুস ত্রিপুরা স্টেট ডাটা সেন্টার, মানে যেখানে এই লিঙ্কটা টিপে যেখানে সবাই তার নিজের রেজিস্ট্রেশন করেছিল সেই সাইটটাই বলে টেকনিক্যাল ইস্যুসের জন্য সবাই যে বায়োডাটা এবং রেজিস্ট্রেশন ছিল সেটা তারা খুঁজে পাচ্ছে না। আশ্চর্যকর ব্যাপার, এত বড় একটা দপ্তর, এত বড় একটা সাইট, সেটা ক্র্যাশ করে গেছে। এবং তারপরে 7 দিনের টাইম দিয়েছিল যাতে রিসাবমিট করা হয়। কিন্তু আমাদের কাছে খবর আছে যে যখন রিসাবমিট করার জন্য বলা হয়েছে, অনেক লোক রিসাবমিট করেছেন, কিন্তু ম্যাক্সিমাম অধিকাংশই ছাত্রছাত্রীরা বা যুবক যুবতীরা যারা এই চাকরির জন্য রেজিস্ট্রেশন করতে চেয়েছে বা রেজিস্ট্রেশন করতে চেয়েছে, তাদের এই সার্ভার ডাউনের প্রবলেমে তারা রেজিস্ট্রেশনটা করতে পারেনি। इन सभी रिक्तियों के फिर से आवेदन की अंतिम तिथि को 7 दिन और बढ़ाने की मांग की गई है। একটাই থাকবে যে আরও 7 দিনের টাইম যাতে দেওয়া হয় এবং এখানে এই দপ্তরের ভেতরে যাতে একটা অফলাইন রেজিস্ট্রেশন সেন্টার খোলা হয়। যারা যারা করতে পারছে না, যাদের সার্ভার প্রবলেম আসছে এই সাইটে, এই সার্ভার প্রবলেম যাতে না হয়, অতি সত্বর যাতে এটাকে ঠিক করা হয়
এবং তারপর আরও 7 দিন বাড়িয়ে এবং এখানেও যাতে একটা অফলাইন রেজিস্ট্রেশন সেন্টার খোলা হয়, যার দরুন ছেলেমেয়েদের জন্য ইজি হবে এই পোস্টগুলোতে অ্যাপ্লাই করা। उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा संचालित डेटा सेंटर सर्वर में एक बड़ी गड़बड़ी के कारण पिछले 1 महीने से भी अधिक समय में भूमि पंजीकरण, भर्ती प्रक्रिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म समेत अनेक महत्वपूर्ण ऑनलाइन सेवाएं राज्य में ठप पड़ी हुई है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि 1 दर्जन से अधिक अहम ऑनलाइन सेवाएं निष्क्रिय हो चुकी है, जिससे नागरिक सुविधाएं और सरकारी कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। राज्य डेटा सेंटर के विकास और रखरखाव सहित DIT के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स बंद हो चुके हैं, ऐसा आरोप है विपक्षी राजनीतिक दलों का। संकट को और गंभीर बना रही है ये बात कि IT विभाग द्वारा संचालित राज्य सरकार की कई सारी वेबसाइटें नियमित रूप से अपडेट नहीं की जा रही है। कई मामलों में अनिवार्य सुरक्षा ऑडिट अभी तक नहीं हुआ है, जिससे संवेदनशील डिजिटल बुनियादी ढांचा खतरे में पड़ गया है। त्रिपुरा के बाहर की एक प्राइवेट कंपनी को नियमित डेटा बैकअप लेने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन आरोप है कि ये कंपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में विफल रही है। फलस्वरूप क्रैश हुई सेवाओं के लिए कोई भी डेटा बैकअप उपलब्ध नहीं हो सका, जिससे रिकवरी प्रक्रिया गंभीर रूप से प्रभावित हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन के केंद्रीय समिति सम्मेलन से पहले पूरे प्रदेश में महिला संघ के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इसके तहत शुक्रवार को राधानगर क्षेत्र में एंटी वॉर ह्यूमन चेन का आयोजन किया गया। डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन के नेतृत्व ने आज कहा कि पैलेस्टाइन पर इजराइल के हमले में हजारों बच्चे और महिलाएं मारे गए हैं। इसके अलावा युद्ध के कारण ईरान में मरने वालों की संख्या 1000 से ऊपर चली गई है। इसीलिए यह मानव श्रृंखला युद्ध नहीं बल्कि शांति का संदेश लेकर है। डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन ने आज पहलगाम में हुए आतंकी हमले की भी कड़ी निंदा की। আমরা লক্ষ্য করছি প্যালেস্তাইনের উপর ইসরায়েলি যে আক্রমণ, সেই আক্রমণে হাজার হাজার শিশু নারী তাদের জীবনহানি ঘটছে, তাদেরকে হত্যা করা হচ্ছে। সেই নিরপরাধ নিরীহ নারীদের যে আত্মবলিদান, সেই আত্মবলিদানকে স্মরণে রেখে আজকে আমরা রাস্তায় নেমেছি। আমরা দেখেছি যে ইরানের উপর যে আক্রমণ সংগঠিত হয়েছে তার বিরুদ্ধে আমরা স্লোগান তুলেছি। তাই আমরা স্লোগান তুলেছি, যুদ্ধ নয় শান্তি চাই। আমরা লক্ষ্য করেছি আমাদের দেশের পেহেলগ্রামে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণে 26 জন নিরীহ নাগরিক, সেখানে পর্যটক সেখানে নিহত হয়েছেন। তাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আজকে আমরা এখানে মানব শৃঙ্খল যে কর্মসূচি তা সংগঠিত করছি। भाजपा सरकार ने चुनाव से पहले नियमितीकरण का वादा किया था, लेकिन इसके बावजूद चुनाव के बाद उन्हें नियमित नहीं किया गया। इसके खिलाफ शुक्रवार को त्रिपुरा इरेगुलर एम्प्लॉयज फोरम ने महाकरण आंदोलन आयोजित किया। 2018 और 2023 के विधानसभा चुनावों से पहले अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया गया था, लेकिन बाद में उस वादे को तोड़कर भाजपा सरकार ने विश्वासघात किया, ऐसा आरोप लगाया त्रिपुरा अनियमित कर्मचारी मंच ने। इतना ही नहीं, मंच का यह भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद 2018 में राज्य सरकार ने अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण की स्कीम को उल्टा रद्द कर दिया। এই রাজ্যের সন্তান, এদের প্রতি সরকারের দায়িত্ব, সরকার সেই দায়িত্ব তো পালন করছেন না। করলে তো 7 বছরে স্কিম বাতিল করতেন না, করলে তো তারা তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করে অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ করতেন। গত বিধানসভা নির্বাচনের পূর্বে তো 2017 নির্বাচনের পূর্বে তো অনেক অনিয়মিত কর্মচারী রাজ্য সরকার এই তৎকালীন বিরোধী দলের প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করেছিলেন। বিশ্বাস করার মধ্যে অন্যায় নেই, অন্যায় হচ্ছে বিশ্বাস ভঙ্গ করার মধ্যে, অন্যায় হচ্ছে বিশ্বাসঘাতকতা করার মধ্যে। আমাদের রাজ্যের মানুষ কিংবা অনিয়মিত কর্মচারীরা সরল প্রাণ মানুষ, তারা বিশ্বাস করেছিলেন বোধহয় 18তে সরকার পরিবর্তন হলে সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে, সমস্ত অনিয়মিত কর্মচারী নিয়মিত হবেন। সেই বিশ্বাসটুকুর উপর তারা সব ভয়ঙ্কর আঘাত এনেছেন। 31 জুলাই 2018 তারা বিশ্বাস ভঙ্গ করেছেন, তারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण और नियमितीकरण की स्कीम को फिर से लागू करने समेत कुल 8 सूत्रीय मांगों को लेकर शुक्रवार को त्रिपुरा अनियमित कर्मचारी मंच ने सचिवालय अभियान चलाया। সমস্ত অনিয়মিত কর্মচারীদের অবিলম্বে নিয়মিতকরণ করতে হবে। নিয়মিতকরণ সাপেক্ষে অনিয়মিত কর্মচারীদের সমকাজে সমবেতন দিতে হবে। যে সমস্ত আংশিক সময়ের কর্মী আছেন, যাদের 10 বছর পূর্ণ করেছেন,
তাদেরকে অবিলম্বে অনিয়মিত কর্মীর স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে। যে সমস্ত অনিয়মিত কর্মচারী ইতিমধ্যে শূন্য হাতে অবসরে গেছেন তাদেরকে এককালীন 10 লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যে সমস্ত অনিয়মিত কর্মচারী মারা গেছেন তাদের প্রত্যেকের পরিবারকে 10 লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আমরা দাবি করছি অনিয়মিত কর্মচারীদের জন্য যে স্কিম ছিল 2006 এবং 2007-এর স্কিম, সেই স্কিম 31শে জুলাই 2018-তে বাতিল করা হয়েছিল। আমরা দাবি করছি অবিলম্বে অনিয়মিত কর্মচারীদের জন্য স্কিম পুনরায় চালু করতে হবে। उल्लेखनीय है कि 2006 से 7 में यह स्कीम लागू की गई थी, जिसके तहत 10 वर्ष की सेवा के बाद अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाता था। लेकिन 31 अगस्त 2018 को राज्य सरकार के एक फैसले के तहत इस स्कीम को बंद कर दिया गया था। फिलहाल राज्य में अनियमित कर्मचारियों की संख्या लगभग 40,000 है। इस अभियान के दौरान त्रिपुरा अनियमित कर्मचारी मंच के एक प्रतिनिधि मंडल ने पूरे मामले को लेकर राज्य के मुख्य सचिव को एक डेपुटेशन सौंपा है। इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व अधिवक्ता पुरुषोत्तम राय बर्मन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। बाकी की खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জিনি, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। बाकी की खबरें कुछ इस प्रकार है। त्रिपुरा लोक शिक्षालय हाई स्कूल के छात्रों ने स्कूल में खराब शैक्षणिक बुनियादी ढांचे और शिक्षकों की कमी के विरोध में नेशनल हाईवे को अवरोधित कर दिया। एक तरफ स्कूल में बिजली, पीने के पानी और मिड डे मील के लिए उचित बुनियादी ढांचे के अभाव, तो दूसरी तरफ स्कूल में हॉस्टल में कोई वार्डन नहीं है। नतीजतन स्कूल के छात्रों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों ने शुक्रवार सुबह 10 बजे चंपकनगर के पास असम अगरतला नेशनल हाईवे को अवरोधित कर दिया। बाद में स्थानीय प्रशासन के वादे और पुलिस के हस्तक्षेप के बाद नेशनल हाईवे को खाली करा दिया गया। এরম ঠিক নাই, এর জন্য আর আমরা মিটিং খাওয়ার কষ্ট হয়, বয়া খান লাগে, এর লাগা আমরা স্কুল আবার 12 স্কুল লাগে, আমরা মাধ্যমিক ভাবিলে কই স্কুল পড়মু। মাস্টার আছেন, টিচার মাস্টার প্রমোশন হয়েছে, এর লেগে স্কুলে টিচার নাই, টিচার কম, আর টিচার লাগবে। স্কুলে কি জল পড়ে? হ্যাঁ, ক্লাসে ক্লাসে। लामडिंग बदरपुर पहाड़ी रूट पर बड़े भूस्खलन के कारण ट्रेन सर्विसेज दोबारा बंद कर दी गई है। इस कारण गुवाहाटी और लामडिंग में राज्य के हजारों रेल यात्रियां फंसे हुए हैं। कुछ दिन सामान्य रूप से ट्रेन चलने के बाद एक बार फिर भूस्खलन के कारण त्रिपुरा समेत आसाम के बड़े हिस्से से लंबी दूरी की ट्रेनों का संपर्क कट गया है। इस स्थिति में त्रिपुरा के कम से कम हजारों यात्री गंभीर संकट में पड़ गए हैं। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे अथॉरिटी ने गुवाहाटी, लामडिंग, अगरतला, शिलचर और बदरपुर में इमरजेंसी के लिए कंट्रोल रूम खोला है। हाफलों के पास रेलवे ट्रैक पर पत्थरों का भूस्खलन होने के कारण 24 जून से ही लंबी दूरी की ट्रेनों से त्रिपुरा कट गया था। 6 दिन बाद 30 जून को मलबा हटाए जाने के बाद पहाड़ी रूट पर ट्रेनें चलनी शुरू हुई। बुधवार को लंबी दूरी की ट्रेनें कुछ हद तक सामान्य हुई थी, लेकिन गुरुवार दोपहर के बाद मोपा दिमा हसाओ के बीच फिर से भूस्खलन होने से ट्रेन सेवाएं ठप हो गई। गुरुवार को भूस्खलन के चलते पहाड़ी रूट पर ट्रेन सेवा बंद होने से राज्य के करीब 10,000 यात्री रास्ते में फंस गए। अगरतला की ओर से जो यात्री रवाना हुए थे
उनमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल थे जो देश के विभिन्न हिस्सों में उच्च शिक्षा के लिए जा रहे थे। गुरुवार सुबह शाबरूम से शियालदा के लिए रवाना हुई थी कांचनजंगा एक्सप्रेस, जो हाफलोंग के पास माहौर स्टेशन पर जाकर फंस गई। अब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने निर्णय लिया है कि ट्रेन को यात्रियों समेत वापस अगरतला लाया जाएगा। अगरतला मुंबई एक्सप्रेस भी अगरतला से रवाना होकर हाफलोंग से वापस लौट रही है। गुरुवार शाम अगरतला स्टेशन से छूटी त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस भी धर्मनगर से वापस लौट आई है। दूसरी ओर शियालदा से चलकर आई कांचनजंगा एक्सप्रेस ने यात्रियों को लामडिंग स्टेशन पर उतार दिया है। लामडिंग शाबरूम के बीच ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। इसके चलते राज्य के अनेक यात्री फंसे हुए हैं। आनंद विहार अगरतला तेजस राजधानी एक्सप्रेस के यात्रियों को गुवाहाटी स्टेशन पर उतार दिया गया है। इसी तरह बेंगलुरु अगरतला हमसफर एक्सप्रेस के यात्रियों को भी गुवाहाटी में उतार दिया गया है। गुवाहाटी अगरतला स्टेशन को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। तेजस राजधानी एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस और गुवाहाटी एक्सप्रेस के अगरतला के लिए रवाना यात्री गुवाहाटी स्टेशन पर फंसे हुए हैं। दूसरी तरफ लामडिंग स्टेशन पर कांचनजंगा एक्सप्रेस के यात्री फंसे हुए हैं। इस स्थिति में गुवाहाटी और लामडिंग स्टेशनों पर त्रिपुरा के कम से कम 5000 यात्री फंसे हैं। वहीं त्रिपुरा से रवाना हुई कांचनजंगा एक्सप्रेस, एलटीटी एक्सप्रेस और अगरतला फिरोजपुर एक्सप्रेस के यात्रियों को अगरतला वापस लाया गया है। कुल मिलाकर भूस्खलन के कारण लंबी दूरी की ट्रेनें बंद हो जाने से राज्य के 10,000 से अधिक यात्री गंभीर संकट में हैं। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे अथॉरिटी ने बताया है कि शीर्ष अधिकारियों की निगरानी में रेल लाइन को साफ करने का कार्य शुरू हो गया है। हालांकि शुक्रवार को ट्रेन सेवा बहाल होगी या नहीं, इसको लेकर फंसे हुए यात्रियों के बीच गहरी चिंता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। विशालगढ़ कोर्ट और एसडीपीओ ऑफिस के बीच बीएसएफ कैंप के गेट पर आधी रात को फेंसिडिल से लदी वाहन पलट गई। यह वाहन कमलानगर जाते समय पलट गई। हालांकि प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि तस्करी से लगभग 2 घंटे पहले तक काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी विशालगढ़ पुलिस स्टेशन के आसपास घूमती रही। प्रत्यक्षदर्शियों ने यह भी बताया कि फेंसिडिल से लदी वाहन जब पलटा तब तस्कर गाड़ी से उतरा और कई कार्टन फेंसिडिल गाड़ी में भरकर वहां से भाग गया। पुलिस ने बताया कि उनके मौके में पहुंचने से पहले ही तस्कर वहां से फरार हो गया। घटना এরকম খবর পাই যে থানা থেকে যে বিএসএফ ক্যাম্পের 1 নম্বর গেটের পাশে 12:40-45 দিকে একটা বোলেরো পিকআপ আউটলাইন হয়ে যায় এবং এটা ফেন্সিডেল লোডেড ছিল। তো আমরা এসে কিছু ফেন্সিডেল মাটিতে পড়ে গেছে পেডি, কিছু গাড়িতে ছিল। টোটাল আমরা 40 পেডি ফেন্সিডেল পেয়েছি আর কিছু খুচরা পেয়েছি। কাউকে পাওয়া যায়নি। গাড়ি যখন আউটলাইন হয় তখন তারা চলে গেছে এখান থেকে। আমরা এসে মালগুলি আর গাড়িটা পেয়েছি। আমরা ইনভেস্টিগেশন করে বের করব। গাড়ির নাম্বার আছে, কিছু কাগজপত্র পাওয়া গেছে গাড়িতে। ঘটনাটা बीएसएफ এর 1 নম্বর গেটের একটু দক্ষিণ দিকে। भारतीय रेल मंत्रालय ने यात्री टिकट्स के किरायों में फिर से पुनः निर्धारित की है। 1 जुलाई से लागू हुए इस बढ़े हुए किराए को लेकर कई यात्रियों में अभी असंतोष है। 1 जुलाई से एक्सप्रेस ट्रेनों के टिकट के दाम बढ़ा दिए गए हैं। मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के नॉन एसी कोच में प्रति किलोमीटर 1 पैसे और एसी कोच में प्रति किलोमीटर 2 पैसों की दर से किराया बढ़ाया गया है। अर्थात नॉन एसी यात्रियों को हर 100 किलोमीटर की यात्रा के लिए टिकट में 1 रुपये अधिक देना होगा और एसी यात्रियों को 2 रुपये अधिक चुकाने होंगे। इस किराया वृद्धि को लेकर एक ओर जहां आम लोगों के बीच मिक्स्ड रिव्यू देखे जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्षी राजनीतिक दलों की ओर से कड़ी आलोचना भी की गई है। लगातार बढ़ती महंगाई से वैसे ही परेशान दिहाड़ी मजदूर, छात्र छात्राएं, छोटे व्यवसायी और आम जनता। ऐसे समय में रेल टिकट के दाम बढ़ने से कई यात्रियों ने असंतोष जताया है। কোনো কিছু মিডিয়া বা কোনো কিছু খবরে সেরকম তথ্য আমরা পাইনি যে রেলের ভাড়া বাড়ছে। ভারত সরকার হঠাৎ করে যে রেলের ভাড়া কিছুটা বাড়িয়ে দিয়েছে সেটা বুঝতে পারলাম টিকিটটা কেটে। ভাড়াটা বেড়ে গেছে, এটা আমি মানসিকভাবে তো সেরকম প্রিপেয়ার ছিলাম না। টাকা পয়সা যথারীতি নির্ধারিত টাকা পয়সা নিয়ে এসেছি, এসে দেখলাম হঠাৎ করে একটু ভাড়াটা বেড়ে গেছে, এটাই একটা অসুবিধা।
मूल्य वृद्धि कभी भी किसानों या गरीबों की मदद नहीं करती, बल्कि ये केवल भाजपा सरकार को अपना खजाना भरने में मदद करती है। ऐसी ही प्रतिक्रिया दे रहे हैं विभिन्न विपक्षी राजनीतिक दल। नई नीति के अनुसार लंबी दूरी की एसी और नॉन एसी ट्रेनों में प्रति किलोमीटर न्यूनतम आधा पैसा से अधिकतम 2 पैसे तक किराया बढ़ाने का फैसला किया गया है। इससे चालू वित्त वर्ष में रेलवे को लगभग 700 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा इनकम होने की संभावना है। हालांकि किराया बढ़ाया तो गया है, लेकिन यात्री सुरक्षा और सुविधा को लेकर रेलवे कितना ध्यान दे रहा है, इस पर भी सवाल उठते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। कुमारघाट के वार्ड नंबर 5 में हल्की बारिश होने पर भी पानी जम जाता है, जिससे 25 परिवारों को परेशानी हो रही है। जल निकासी की खराब व्यवस्था के कारण इलाका टापू बन गया है, जिससे डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का समस्या और भी बढ़ रहा है। स्कूली बच्चों, मरीजों और आम लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही है। नगर पालिका की कार्यवाही बेअसर रहने के कारण लोगों ने मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज उठाई और समस्या के समाधान की मांग की। জল জমছে অনেকদিন ধরে, জল নিষ্কাশনের কোনো ব্যবস্থা নাই। এখানে 20-25 পরিবার এদিকে দক্ষিণ দিকে এবং পশ্চিম দিকে অনেক পরিবার এই রাস্তা যাতায়াত করে, কিন্তু এখন ভীষণ অবস্থাতে আছে। আমরা জলমগ্ন, ডেইলি দৈনন্দিন জীবনে যে যাতায়াত, জল পাড়িয়ে যেতে হয়, বাচ্চা পোলাবান স্কুলে যেতে খুব কষ্ট হয়। তাদেরকে মানে জুতা মোজা পরে স্কুলে যেতে হয়, কিন্তু এই জলে কিভাবে তাদের মানে स्कूल माने कष्ट है। तारपर एखाने बाकी की न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা